This conference will now be recorded. Hello. Yeah, and the valuation of inventories, physical verification of fixed assets, physical verification of inventories, and all other issues. We have a great responsibility this time. So Mohit Butoria is going to discuss on all the important aspects which an auditor has to look into before finalizing the audit assignment. And I will request Mohit to now present his deliberation, and thereafter all the participants, after 40-45 minutes, once it is over, they will join and raise any issues which is important. Yeah. Now over to Mohit. Yeah. Thank you, Tarun. Thank you, Pramod. This year audit of financial statements is very critical. We have in the last one and a half month around completed 6 assignments. So a lot of difficulties were faced by us during the course of audit, because this is a first time experience, and I hope not to have such kind of experience again in the life. Lot of sound is background sound is coming. Tarun, बहुत sound आ रहा है background का. ये रमाकांत सुरेखा जी, प्रमोद जी, आप लोग अपना माइक को म्यूट कर लीजिए ना. बहुत sound आ रहा है. So Thank you. I'll share my experience as to how did we proceed. These times are very challenging. We have to devote a substantial amount of time this time during the course of audit, and basically what has happened, if say we used to devote 100 man hours for an assignment comprising of 80% being devoted by our staff and 20% by us. This time the proportion of man hours devoted has risen from say 100 hours to 150 hours, and our involvement in terms of percentage of time has also gone up significantly from 20% to say 30 to 40%. So the speed of the audit has also slowed down, because we are not used to working in such type of environment. Basically we are now working through digital medium, but there are number of issues which are very important, because you see, if you have outstation clients, I am sure none of us will like to travel. Like for us, we have completed a number of audit of listed companies. We have already completed. We have board meetings on Monday and Tuesday, so we did not travel. All the work was done from Calcutta through digital medium, through video conferencing, conference over Zoom. Other audit procedures performed through video conferencing. So we have highlighted, we have jotted down a few points which are very important for us to consider before conducting the audit. And we'd also like to discuss what Pramod pointed out relating to going concern assumption, physical verification of inventory, physical verification of fixed assets. So let us discuss a few points which are very important when we start the audit. Now, you see, preparation of financial statements is the responsibility of the management. Therefore, we have to first consider what is the impact on business operations, revenues, cash flows of the entity for the year, including the fair valuations, the fair valuations of various assets, investments, estimates, and whether all these have been appropriately assessed by the management. Then we have also to see what is called as events subsequent to the date of balance sheet, whether the events occurring subsequent to the year end but before the issuance of financial statements has been considered by the management. We have two types of events which we will discuss. One are adjusting events and one are non-adjusting events. We have the events occurring after the balance sheet date, Ind AS 4, and we have Ind AS 10. Now, another is whether any adjustments are required to the financial statements and whether they have been appropriately dealt with in the financial statements. A number of adjustments may be required on account of fair valuation of various assets and liabilities. Another is that whether the impact of going concern basis of accounting of the financial statements have been assessed by the management to conclude that going concern is appropriate or
there exists material uncertainty relating to going concern. So again, assessment of going concern is very important. Now, another aspect is whether appropriate disclosures have been made by the management in the financial statements regarding the impact and the management assessments of the same, including the impact on going concern. Meaning to say that बैलेंस शीट में बहुत सारे एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं. नाउ इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज ऑन 31st March 2020. तो मैनेजमेंट विल गिव एन असर्शन एंड मैनेजमेंट विल आल्सो गिव एन असर्शन कि भाई ये हमने आज जो एस्टिमेट किया है owing to uncertainties आज के दिन हमारे हिसाब से सही है, बट फ्यूचर में these estimates may vary. So these are certain disclosures which are required to be given. तो हम उसको we'll discuss in short one by one item. सबसे बड़ा challenge है this time is physical verification of inventory. So now let me just outline. Now physical verification of inventory, although is the responsibility of the management, but as auditors we are to ensure that the inventories are at least counted once a year to ensure the existence, conditions and valuation of the inventory. Now हमको कारों में भी रिपोर्ट करना पड़ता है कि whether physical verification has been conducted by the management at reasonable intervals, whether discrepancies were noticed on such verification and whether they have been properly dealt with in books of accounts. Now let us consider different situation. एक हम physical inventory करते हैं, एक हम physical inventory नहीं करते हैं. अब अगर हम फिजिकल इन्वेंटरी करते हैं तो इट इज नॉट अ न्यू सब्जेक्ट, हमारे को मालूम है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी कैसे करना है, तो इट नीड नॉट बी डिस्कस्ड. बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ओइंग टू कोविड पोजीशन ऐसा हो सकता है कि इट बिकम्स इनप्रैक्टिकेबल, इट हैज बिकम इनप्रैक्टिकेबल टू वेरीफाई इन्वेंटरी एज ऑन 31st March ओइंग टू लॉकडाउन. तो चूंकि लॉकडाउन है तो इट इज ऑब्वियस है कि मैनेजमेंट भी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पाया है, तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन कब करेगा? ऑब्वियसली वो करेगा subsequent to the reopening. Now certain entities may follow up what you call a continuous inventory physical verification system, जहाँ पे वो perpetually over the years regular basis में inventory को verify करता रहता है. But इस साल given what has happened in this year, it is verification, physical verification of inventory, the condition of inventory, the value of the realizable value of inventory this year holds lot of importance. So as auditor हमको क्या करना है कि we have to ensure that the physical verification of inventory should be conducted. Now physical verification will not be conducted as at 31st March, that is for sure. So say physical verification अभी हो रहा है in the month of after lockdown, in the month of May or in the month of June. So auditor का duty है it should be present during the course of physical verification and perform and ensure that the process of physical verification being conducted by the management is appropriate. उसके लिए हमारे पास काफी guidance है, we have been doing all in all out, so I need not elaborate. But yes, जब हम 26 जून को कर रहे हैं या 20 मई को physical verification management कर रहे हैं, हम उसको inspect कर रहे हैं, तो I need to perform rollback procedures कि भाई 31st March में management क्या inventory बोल रहा है, 26 जून में क्या बोल रहा है. अब मैं तो 26 जून को फिजिकल वेरिफिकेशन किया, अब मेरे को रोल बैक करना है 26 जून से 31st March तक करना है, के पीछे जाना है, तो आई परफॉर्म रोल बैक प्रोसीडियर्स. तो व्हाट डू आई मीन बाय रोल बैक प्रोसीडियर्स? 1 अप्रैल से लेके 25 जून तक जो भी परचेज या सेल हुआ है या कंजम्पशन इन आउट हुआ है इन्वेंटरी का, मैं उसको एडजस्ट करूंगा. एडजस्ट करने के बाद आई विल कम टू द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंटरी एज एट 31st March. तो दिस इज वन प्रोसेस. नाउ let us say कि हमारा client outside Calcutta है, like what I can share my experience. My client is outside Calcutta. So last time we had conducted the audit on 31st January. In the month of January our team went on, और हम जब वहां पे गए थे तो we had conducted the physical verification of inventory. Management has conducted physical verification. We even participated. So substantial physical verification was conducted on 31st January. Now can we take up कि 31st January में तो किया ही हुआ ही है, अब हमारे को आज के दिन करने का 31st March का जरूरत नहीं. Now inventory is a very material item in the financial statements. तो हमारे को अब एक है कि I have to ensure कि मैनेजमेंट करंट में भी फिजिकल वेरिफिकेशन करे. तो मैनेजमेंट ने करंट में फिजिकल वेरिफिकेशन किया, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था हमारी टीम के लिए वहां रहना. Then what do we do? Institute ने ऐसे 501 में number of audit procedures बताया for verification of inventory. तो what are the different options? एक ऑप्शन है कि 31st March का क्या इन्वेंटरी है, 31st January का इन्वेंटरी हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया था. अब जो 31st March को मैनेजमेंट इन्वेंटरी दिखा रहा है,
I need to verify the purchase bills in relation to those inventories which are existing as on 31st March. अगर वो है and that audited evidence, based on that audit I am satisfied that ठीक है, हमने तो 31 जनवरी को किया ही है, अब 31 जनवरी के बाद अगर 2 महीना का परचेज हुआ है और वो इन्वेंटरी स्टॉक में है, then I perform alternative procedure, that is I verify the purchase bills to ensure that those inventories which are acquired subsequent to 31st March and those which are lying in closing stock are verified with reference to those purchase bills and other supporting documents. Now, in respect of various items which may have moved out on account of sales or on account of consumption, I need to verify those documents कि ये outward movement of inventories, out consumption of inventories हो गया, and these are the relevant documents. So what I need to see, I need to be satisfied कि 31 मार्च का जो count है based on different procedure performed, that is reasonable and adequate. Now let us say कि मैनेजमेंट में कभी फिजिकल वेरिफिकेशन किया ही नहीं था, फर्स्ट टाइम अभी 20 जून को कर रहे हैं, इट मे बी इन कैलकाटा, इट मे बी आउटसाइड कैलकाटा, देन व्हाट डू वी डू? तो assuming inventories form a material part of financial statements, physical verification becomes a sine qua non, माने इसको हमारे को करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है. Then what do we do? हम मैनेजमेंट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सम ऐप, थ्रू सम जूम, हम उसको वीडियो, ये फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरीज को करा सकते हैं. बट यू सी, ये बोलने के लिए इजी है कि हम उसको जूम के थ्रू करा सकते हैं. अब किसी का इन्वेंटरी का लोकेशन एक है, किसी का 2 है, किसी का मल्टीपल है, किसी का एक इन्वेंटरी लोकेशन 20,000 फुट का है, नंबर ऑफ आइटम 400 500 है. तो इट इज इजी टू से कि आप वीडियो से फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो. दैट इज माने रीजनेबली डिफिकल्ट. वी आल्सो ट्राइड इट. इट इज नॉट सो इजी, क्योंकि इतने सारे आइटम रहेंगे. अब वो मेरे को एक एक आइटम काउंट करके बता रहे हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर कोई एक आइटम का 200 पीस है और वो 200 पीस काउंट कर रहा है, तो हम उस काउंट को भी हम उसमें भी यहाँ से थ्रू वीडियो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं हो पा रहा है. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो भी लिस्ट है वो हमारे को एक बुक स्टॉक का लिस्ट पूरा भेज देता है विद क्वांटिटी. अब वो जैसे जैसे वेरीफाई करता रहता है, वो वहां पे नोट करता है, हम यहाँ पे बैठ के नोट करते हैं. ठीक है, आइटम 1 ये बियरिंग है, ये बियरिंग 500 पीस है, ठीक है, आपने मेरे सामने 500 पीस किया, ठीक है. दैट वे वी आर गोइंग. नाउ रॉ मटेरियल का फिर भी पॉसिबिलिटी है, पैकिंग मटेरियल पॉसिबिलिटी है, फिनिश गुड्स भी पॉसिबिलिटी है. वर्क इन प्रोग्रेस इज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज. मैंने द बिगेस्ट चैलेंज इज वर्क इन प्रोग्रेस. उसको फिजिकली वेरीफाई करना इज अ वेरी बिग चैलेंज. बट ठीक है, समहाउ वी हैव ट्राइड टू मैनेज. नाउ अज्यूमिंग हम ये भी नहीं कर पाते कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी नहीं कर पाते. अच्छा, ये जो हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया, हमको इसको करके हमको इसको अपना पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा. दैट वीडियो वी नीड टू स्टोर एज ऑडिट एविडेंस. नाउ अब हम ये सोचते हैं कि हम ये भी नहीं कर पा रहे. इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू डू. आज के दिन क्या है, अगर हमारा क्लाइंट कैलकाटा में है तो मे बी आई एम इन अ पोजीशन टू गो, इट मे बी आई एम इन नॉट इन अ पोजीशन टू गो. अब अगर हम बोलते हैं कि हम नहीं जा सकते हैं, तो आई नीड टू हैव अ डेफिनेट रीजन एज टू व्हाई आई कैन नॉट गो. कि इज देयर एनी लाइफ थ्रेट ऑन द ऑडिटर इफ आई गो टू दैट लोकेशन. अगर हम खाली बोलेंगे कोविड-19 है, कोविड-19 के कारण हम नहीं गए वहां पे, ऑल्दो द फैक्ट्री इज वर्किंग, देन आई डोंट थिंक इट वुड बी अ रीजनेबल आर्ग्यूमेंट इवन टू मेक. क्योंकि अगर आज के दिन मैनेजमेंट चालू है, उसका ऑपरेशंस चालू है, I can also not say कि my people are not coming. I cannot also say that due to COVID-19 I am not going. These I think will not be acceptable even in these circumstances when the economies has opened up. You can move in and out. Government का कोई restriction नहीं है. Yes, unless I have to travel to a destination for which transport facilities are not available. So then assuming हम उसके लिए भी कोई रैशनल कंसेंसस निकाल रहे हैं कि हमारा जहाँ पे है वहां पे हमारे को ट्रेन सर्विसेज चाहिए जाने के लिए और हम वहाँ लॉकडाउन के कारण नहीं जा पा रहे, या जो एरिया है जहाँ पे फैक्ट्री है वो कंटेनमेंट जोन पे है, तो देयर इज अ हेल्थ हैजार्ड, देयर इज अ लाइफ थ्रेट, हम वहाँ पे नहीं जा सकते हैं. देन ऑब्वियसली आई विल नॉट गो. एंड स्टैंडर्ड में भी उसके लिए एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड है कि जहाँ पे ऑडिटर के लिए थ्रेट टू द सेफ्टी है, वहां अगर ऑडिटर नहीं जाता है, देन स्टैंडर्ड ऑल्सो अलाउज दैट. देन व्हाट डू आई डू अगेन कि भाई उसने बताया कि 31st मार्च को मेरा ये इन्वेंटरी है. नाउ आई नीड टू कोरेबोरेट दिस इन्वेंटरी एंड सेटिस्फाई माई सेल्फ about the quantity of inventory with reference to the purchase and sale invoices. ये हमारे लिए बहुत
ही जरूरी है करना, बिकॉज यू सी अल्टीमेटली एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मटीरियलिटी, ऑल इज अपॉन द ऑडिटर। तो हम अभी काउंट तो परफॉर्म कर लिए हैं, बट नेक्स्ट ऑप्शन इज, am I satisfied with the condition of the inventory? Am I satisfied whether these inventories are moving or non-moving? Am I satisfied about the realizability of the inventories? And I have to also be satisfied कि ये सब inventories defective या damaged नहीं है। Now अगर हम physical verification के location पे नहीं जाते हैं, तो it becomes very difficult to identify the condition of the inventory, the realizable value of the inventories, वो defective है, defective नहीं है। क्योंकि अगर हम इन्वेंट्री को वीडियो कॉन्फ्रेंस से वेरीफाई करते हैं तो हमें को पता नहीं चलता है कि ये मटेरियल डिफेक्टिव है कि नहीं। प्लस क्या हो सकता है, अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, और हम को वो दिखा रहा है कि मेरे पास 15,000 बियरिंग है, तो वो मेरे को बियरिंग काउंट करा रहा है। अब हो सकता है वो सेम बियरिंग को मेरे को 2 बार काउंट करा दे, अब मेरे को उस समय उतना नहीं पता चले। देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी। तो अब अगर हम बाहर है तब तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, हमको ये दोनों प्रोसीडियर ही परफॉर्म करके रखना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई सेइंग से द क्वांटम ऑफ टाइम बीइंग डिवोटेड दिस टाइम इज मच मच हायर कंपेयर्ड टू अर्लियर। और टेक्निकल स्नैक के कारण भी बहुत टाइम लगता है हमारे को उसको अंडरस्टैंड, आई हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड व्हाट डू आई वांट, हाउ डू आई वांट हिम टू डू ऑल दिस थिंग्स, उसके लिए भी उसको समय लगता है। क्लाइंट को भी अपना रिसोर्सेज देना पड़ता है, उसको लगता है कि सेम वर्क डुप्लीकेसी हो रहा है, बट ठीक है वो आपको कोऑपरेट करता है। So these are number of challenges during this course. अब जैसे हमने लास्ट में कहा कि अगर हम वहां पे नहीं जा पा रहे हैं, मैनेजमेंट ने भी पहले फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया था, तो इट इज अ बिग चैलेंज फॉर द ऑडिटर्स। नाउ ऑडिटर के पास ऑप्शन क्या है, अगर वो फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, देन एक ही प्रोसीडियर है उसके पास, दैट ही वेरीफाइज द क्वांटिटी थ्रू ऑल्टरनेट प्रोसीडियर्स, दैट थ्रू इनवॉइसेस, कि भाई परचेज और सेल इनवॉइसेस कंजम्पशन से वो वेरीफाई करेगा कि हाँ वो उस दिन इन्वेंट्री एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था। हैविंग सेड दैट, यू कैन नॉट नाउ फाइंड आउट द कंडीशन एंड रियलाइजेबिलिटी। इसके लिए तो आपको वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, या थ्रू सम मोड आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप वो देख पाए एंड वो रीजनेबली सेटिस्फाइड कि हाँ भाई वो ये काम, ये इन्वेंट्री का कंडीशन एंड रियलाइजेबिलिटी सही है। नाउ अगर इसमें हमको असुविधा है, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आई कैन इंस्ट्रक्ट द मैनेजमेंट कि आप गेट अ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री डन बाय अ थर्ड पार्टी, बाय से इंटरनल ऑडिटर और बाय से चार्टर्ड अकाउंटेंट। से क्लाइंट आपका बेंगलोर में है, बॉम्बे में है, या से धनबाद में है, दुर्गापुर में है, जहां आप नहीं जा सकते हैं, तो you ask your client to appoint an internal auditor or appoint a stock auditor who will conduct the physical verification. But वो जब physical verification करेगा तो उसको भी आपसे इंस्ट्रक्शंस लेगा, ऑल्दो पेमेंट मैनेजमेंट करेगा, बट सैंपल साइज क्या होना है, कैसे वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, आपको क्या फॉर्म में रिपोर्ट देगा। अगर आप होते तो कैसे करते, तो उसको आपको बताना है कि बेसिकली यू आर माई सब्स्टिट्यूट, तो आप मेरे बिहाफ में ये सारा का सारा फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हो, तो आपको वो प्रोसीडियर्स उससे परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड देन यू हैव टू बी परफॉर्म ऑल्टरनेट प्रोसीडियर्स टू रीजनेबली सेटिस्फाई अबाउट द क्वांटिटी, कंडीशन एंड वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरीज। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल कि इन्वेंटरी ऐसा है कि उसका एक रीजनेबल लाइफ है। इट मे सो हैपन कि यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसके पास फिजिकल स्टॉक है, मे बी although pharmaceutical was an essential service, so government had allowed even during lockdown, but given my knowledge there are a number of units which could not operate because their people could not come. So अब ऐसा हो सकता है वो 25 मार्च 26 मार्च को बंद था, उसने 15 अप्रैल को खोला, 20 अप्रैल को खोला, 25 अप्रैल को खोला, कभी भी खोला। तो अब हमारे को ये भी देखना होगा कि जो इन्वेंट्री है, व्हाट आई कॉल एडजस्टिंग इवेंट्स एंड नॉट नॉन एडजस्टिंग इवेंट, anything which affects the valuation of inventories even subsequent to your date of financial statements, which may have the bearing on the value of inventories, say that कि आपकी इन्वेंट्री थी, इन्वेंट्री एक्सपायर हो गई, आपकी इन्वेंट्री थी 31 मार्च को, वो इन्वेंट्री डैमेज हो गई, सो ऑल दोज आर एडजस्टिंग इवेंट्स, और इसका आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यू हैव टू कंसीडर द इम्पैक्ट। तो as I said, this is a very important part. Now, let me come to the second part about fixed assets. So, जैसे हमने inventory discuss किया, fixed assets, it is not mandatory that all fixed assets have to be verified every year.
depending upon the size and nature of the inventories, even fixed assets can be verified over a period of 3 years according to a program of physical verification being conducted by the management. Now you have to ensure कि जो fixed assets था, it is not necessary that auditor should be present at the time of physical verification of fixed asset. You may choose to be present to verify in on test basis the condition and existence of let us come to investments. Now management का investments है, it may be current investments held as stock in trade, it may be long term investments. Now जो stock in trade का valuation है, assuming वो shares है, से जो बाकी का inventory तो हमने discuss कर दिया, अगर वो shares है तो ठीक है, we have to consider value as on 31st March, cost or market value whichever is lower, that is unless we state कि इसका जो market price है, that is not an estimation of the fair value and for which we need to perform alternate valuation. For investments or for items of financial instruments other than stock in trade, जहाँ पे investments in unquoted companies है, invested in subsidiaries है, so we need to also make an assessment about its valuation. कि हो सकता है हमारा जो associate में, हमारा जो subsidiary में या हमारा जो unquoted investment में shares में investment है, that may have been substantially impaired. कि हमने कोई say I had invested in a travel business, उसके मेरे पास shares थे, but due to this, what is valuation? Basically valuation हम जो करते हैं which we say कि determine the fair value of shares, valuation is based on future. तो अब ऐसा हो सकता है कि हमारा किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है जो कि से रियल एस्टेट कंपनी और से क्या ट्रैवल इंडस्ट्री है. अब हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रैवल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट है, नाउ ड्यू टू दिस लॉकडाउन इसका कोई फ्यूचर नहीं है, so my investments are substantially impaired. So particularly when we have investments in such kind of industries which are facing a lot of difficulties such as real estate, travel, tourism, so और हमारा उस कंपनी उस तरह का कंपनीज इन्वेस्टमेंट है, तो वी हैव टू मेक एन असेसमेंट ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स, और अगर इम्पेयरमेंट है तो वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द इम्पेयरमेंट इन द वैल्यू ऑफ दीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. नाउ नेक्स्ट लाइन ऑफ आइटम ऑफ इन्वेंटरी, लेट अस कंसीडर ट्रेड रिसीवर्स. तो अगर मेरा ट्रेड रिसीवर्स है, यू नो, अब what are the alternative audit procedures when it comes to verification of trade receivables? Number one, हमारे को direct confirmation procedure है, so that management or we directly send confirmation, and sending of confirmation should be under the control of the auditors, और वहां से जो confirmation का reply आएगा वो भी directly auditor को ही आएगा. तो अब समझिए मैनेजमेंट ने 31 मार्च को confirmation नहीं लिया था से, तो अभी भी हम उसको बोल सकते हैं कि भाई आप सारा का सारा डेटर को कंफर्मेशन भेजो 31 मार्च का. नाउ इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेंड थ्रू यू नो बाय पोस्ट, तो आप उसको ईमेल से भेजो और फॉलो अप करके उससे रिप्लाई बनाओ और उस ईमेल में लिख दो, मैनेजमेंट को भेज दो, उसमें मेरे को सीसी कर दो कंफर्म जब आप कंफर्मेशन भेज रहे हो, और उसमें बोल दो कि आप इसका रिप्लाई प्लीज सेंड डायरेक्टली टू से प्रमोद मुंद्रा @gmail.com, प्रमोद जी को या तरुण जी को डायरेक्ट ऑडिटर क्लाइंट भेजेगा एंड विद अ कॉपी मार्क टू द क्लाइंट. अब ये जितने भी सारे मेल्स आ गए जो कंफर्मेशन थ्रू मेल भी आ गए, देन वी एसिमुलेट ऑल दोस और हम देखते हैं कि भाई उसका बैलेंस में और कंफर्मेशन का बैलेंस में क्या डिफरेंस है. रिकंसिलेशन होगा, वो रिकंसाइलेबल आइटम may have impact on financial statements, it may not have impact on financial statements, so that again needs to be considered. So this is about debtors. अब ऐसा हो सकता है कि in these times अगर एक बार हम भेजते हैं 7 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं आता है, तो नॉर्मली व्हाट वी हैव टोल्ड कि आप भाई फोन करके उससे फॉलो अप कर लो, क्योंकि अभी क्या अगर आपका डेटर है तो आप पेमेंट के लिए तो फॉलो अप करते ही हो. इट गोज विदाउट सेइंग कि 31 मार्च का अगर डेटर है और वो पेमेंट नहीं आएगा तो वो फॉलो अप करेगा ही करेगा. तो आप फॉलो अप करके कंफर्मेशन मेल पे मंगा लो. अगर एक बार में नहीं आ रहा तो दोबारा उसको कंफर्मेशन भेज दो. अब अगर 2 बार में भी नहीं आएगा देन व्हाट डू आई परफॉर्म अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स कि ठीक है जो डेटर में बुक बैलेंस है वेदर दीज हैव बीन सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड, अगर वो सब्सिक्वेंट रियलाइज हो गया तो दैट अगेन प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ एविडेंस. ये जो डेटर बुक्स में क्रिएट हुआ है जो 31 मार्च को, वी अगेन वेरीफाई विद रेफरेंस टू द इनवॉइसेस कि भाई इसको जो सेल हुआ था पूरा, हम उसका इनवॉइस प्लस पूरा का पूरा आगे का ट्रेल देख ले
कि those debtors which are existing 31st March के पहले sales in respect of those has been completed in terms of the contract of sale. So that is how we verify the amount of the debtor. अब हमने amount तो verify कर लिया, but what about recoverability? What about provision? What about ECL, expected credit loss? What about impairment? इसको जानने के लिए lot of challenges are there. Now अब हमको थोड़ा सा management को इस साल क्या है ना conservatism सिखाना पड़ेगा in the sense कि भाई you be a little conservative. अब आज के दिन it is very difficult for we to determine कि भाई ये वो जो debtor है वो solvent है या insolvent है आज के दिन. Very very difficult. अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी था उसने हमको चेक दिया वो चेक बाउंस हो गया. अब 31st मार्च से लेके टिल द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या गोइंग फॉरवर्ड वो सॉल्वेंट रहेगा नहीं रहेगा, these are very difficult to say. तो यहाँ पे भी हमको अपना थोड़ा जजमेंट लगाना पड़ेगा, मैनेजमेंट से डिस्कस करना पड़ेगा as far as material items of creditors are concerned, whether these are recoverable, these are not recoverable, whether those units are in operation or they are not in operation. Now let us say अगर वो ऐसा इंडस्ट्री है which is under lockdown, which is under severe threat, so we may say management, you please based on conservatism make certain amount of provision. Now it is easy for me to say कि आप provision करो. Now understand from the psychology of the management अपना balance sheet में especially now keeping in view banks and all does not want to take a hit. Generally they do not want to take a hit on the balance sheet. अब रहा उसका 50 करोड़ का डेटर है, मे बी ऑल डेटर्स आर से 3 months और 4 months ओल्ड, तो वो बोलेंगे मेरे करंट डेटर्स है. नाउ बहुत बड़ा चैलेंज है ये डिटरमाइन करना अबाउट द रिकवरेबिलिटी ऑफ दोस डेटर्स. सो अब हम मैनेजमेंट से एक असर्शन स्टेटमेंट लेते हैं कि भैया ये जो डेटर्स है आपने इसका रिकवरेबिलिटी को भी वेरीफाई किया एंड बेस्ड ऑन कंडीशंस एग्जिस्टिंग एट द डेट ऑफ साइनिंग द बैलेंस शीट आपके पास कोई एविडेंस नहीं है ये बोलने के लिए कि these debtors have been impaired, therefore provision is not done. Many companies are what they are doing कि अगर उनको लग रहा है कि स्पेशली नाउ कि अगर मेरा कोई डेटर 1 साल से नहीं आया है या 3 साल से ज्यादा नहीं आया है और जिसके अगेंस्ट में हमने केस नहीं फाइल किया है, now the chances of recoverability of these in the given situation is very very difficult. तो those many companies are taken a prudent approach कि ठीक है आप जो बोल रहे हैं अगर मेरा 1 साल से ज्यादा डेटर है या 3 साल से ज्यादा डेटर है तो हम डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस, अगर गवर्नमेंट पार्टीज है तो पीपल जनरली डू नॉट प्रोवाइड क्योंकि कई गवर्नमेंट पेमेंट्स बहुत लेट आते हैं, स्पेशली केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पे रहता है कि बैलेंस 10% हम आपको 2 साल या 3 साल बाद देंगे. अदर देन दोस केसेस दे प्रोवाइड फॉर इम्पेयरमेंट कि ठीक है हम उसको प्रोवाइड करते हैं. बट 31 मार्च का जो है डेटर अगर वो 3 महीना 4 महीने का ही है तो उसका प्रोविजन के लिए हमारे को भी जस्टिफिकेशन मैनेजमेंट को देना कि भाई आप इस रीजन से कीजिए, और अगर मैनेजमेंट नहीं करता ऐसे तो हमको ऑडिट रिपोर्ट में, क्योंकि हमारा हथियार क्या है बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है क्वालिफिकेशन, तो आई डू नॉट हैव एनी साउंड रीजन टू क्वालिफाई इफ इवन द मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा. सिमिलरली इट मे बी इन केस ऑफ से एनबीएफसी जहां पे वो लोन दिया है. अब जब वो लोन दिया है तो वो हो सकता है किसी कंपनी ने मोरेटोरियम एक्सरसाइज कर लिया, किसी कंपनी ने मोरेटोरियम एक्सरसाइज नहीं किया. ना अगर वो एनपीए आरबीआई का गाइडलाइंस के हिसाब से तब तो हमको उसका प्रोविजन करना ही पड़ेगा. बट अगेन कंसीडर अ केस कि हमारे जो नॉर्मली क्लाइंट्स हैं जो देते हैं बेसिकली दे गिव अनसिक्योर्ड लोन्स, तो वंस दे हैव गिवन अनसिक्योर्ड लोन से अब वो ऐसी कंपनी को देते हैं अनसिक्योर्ड लोन जिसका नेगेटिव नेटवर्क है. तो अभी क्या हमारे को ये भी अप्रेजल करने का जरूरत है कि आप जिस पार्टी को लोन दिए वो सॉल्वेंट है कि नहीं है. तो ऑब्वियसली 31 मार्च 20 का तो बैलेंस शीट आएगा नहीं, 31 मार्च 19 का बैलेंस शीट आएगा. तो अगर हमने किसी को लोन दिया है विच कंपनी हैज नेगेटिव नेटवर्क, so it is very difficult to conclude that the amount which is stated in the balance sheet at the given amount without any provision will be correct. So in such situation mein management should make a provision because we can say that you look wo uska negative net worth hai, therefore how he will be in a position to service your debt unless management bole ki nahi humne jab diya tha negative net worth tha but usne mere ko future 5 saal ka जब हमने उसका लोन इवैल्यूएट किया था, he had given me cash flows, he had given me documentary evidence and based on that I am reasonably satisfied कि उसका future cash flows है और मेरा जो लोन गिवन का पीरियड है 10 ईयर है उसमें he has reasonable cash flows कि पैसा आ जाएगा. अगर नहीं है
सपोज करो ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो क्रेडिट अप्रेजल, देयर इज नो फ्यूचर कैश फ्लो, देयर इज नो टेंजिबल एविडेंस फॉर द बेसिस ऑफ व्हिच वी विल कंक्लूड कि नहीं ये दिस जेंटलमैन, दिस कंपनी टू whom the loan has been given has a future cash flows to repay. We have to impress upon clients to make the provision, and if they do not make, and if they are unable to provide such evidence, we have a very strong case to even qualify our report. Now, bank balances, fixed deposits, those are not an issues. Advance tax, TDS in the line items in the balance sheet, those are also not issues. Now, when it comes to sundry creditors liabilities, तो there is no question of impairment. Liabilities जो है हमारे को पूरा का पूरा प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, which we all do, और उसमें I don't think there will be much issues. जो हम पहले करते थे अभी भी करेंगे. कोविड के कारण क्या आ गया, हमारा impairment का issues बहुत आ गया on different line items of assets on assets. Now अब let us come to some clauses of CARO. एक CARO में हमको नोटिफिकेशन निकाला था कि भाई मार्च से लेके जून तक अगर आपका टीडीएस का पेमेंट नहीं होता है तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 1.5% पर मंथ टू आई थिंक 0.75%, शायद 15 या 18% से 9% हो गया. बट वहां पे ये नहीं बोला गया कि इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ डिफॉल्ट, माने वो डिफॉल्ट माना जाएगा बट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे घटा दिया गया. तो क्वेश्चन arises से the client has not paid the TDS for the month of March. तो whether अब हम उसको बोलेंगे क्या कि whether the company was regular in payment of TDS. So maybe अगर there are a number of months, अगर एक या दो महीना होता है तो we say that the company was regular except barring a few case. Let us say कि खाली मार्च का ही वो TDS टाइम से नहीं पेमेंट किया. Then what, whether we say that this was a delayed payment or company was in default. To me, ये जो गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दिया है, this is with reduced rate of interest. Just the rate of interest has reduced. The time period for payment has not been extended from 30th April to 30th May or 30th June. So that should constitute as a default. So अगर ऐसा है तो we have to state this. Similarly, it has take consideration कि बैंक ने कहा, आरबीआई ने एक सर्कुलर ला के कहा कि मार्च से लेके जून तक किसी का भी ईएमआई या इंटरेस्ट ड्यू होता है तो आपके पास ऑप्शन है उसको मोरेटोरियम 3 months का देने का, which was then extended to 6 months. Let us take a case where a company did not opt for moratorium. तो कंपनी को 15 या 20 मार्च को मैंने पोस्ट लॉकडाउन या लॉकडाउन उसको कोई इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना था और ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड कोई करना था, बट उसने मोरेटोरियम ऑप्ट नहीं किया. तो अगर उसने मोरेटोरियम ऑप्ट नहीं किया है देन those installments were due for payment, those interests were due for payment which they have failed to service. So this would constitute a case of default. The client cannot say कि देखो आरबीआई का सर्कुलर है उसमें मोरेटोरियम दिया है, but what is important is कि जो मेरा lender है he must give me the option to exercise the moratorium and I must also exercise the moratorium. दोनों कंडीशन होना चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशन है और उसके बावजूद उसने मार्च का इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं सर्व किया है then that is fine. अगर है, अगर नहीं है, उसको मोरेटोरियम नहीं मिला है तो and he has not exercised the moratorium, then that event will constitute a default. तो उसका भी हमारे को बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर देना पड़ता है. Yes, there is been default और as at balance sheet date the quantum of default is so much. Two things are also very important कि आप बैलेंस शीट में अकाउंटिंग पॉलिसी में you must give a note on like use of estimates कि यूज ऑफ एस्टिमेट्स एक अकाउंटिंग पॉलिसी में होना चाहिए कि हमने ये बैलेंस शीट जो प्रिपेयर किया है, आई हैव टेकन इनटू कंसीडरेशन द कोविड-19 एंड वी हैव मेड एन असेसमेंट, और उस असेसमेंट और एस्टिमेट के हिसाब से हम लोगों ने जहां जहां भी इम्पेयरमेंट हमको लगा था एसेट्स में दैट हैज बीन डन. मैनेजमेंट एक नोट्स में भी एक पूरा देगा कि मैनेजमेंट, ये तो एक पॉलिसी मैटर हो गया, प्लस एक मैनेजमेंट एक नोट में भी एक असर्शन देगा कि हमने इन व्यू ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 हमने अपना एसेट लायबिलिटी का, हमने एक अपना बिजनेस का, हमने सारा का एक ब्यौरा लिया है. वी हैव कंसीडर्ड
the future cash flows. First we have considered the various assets, liabilities existing on the date of balance sheet, or considering my business forecast, my future cash flows, expected realizability of assets and liabilities. Given the present uncertainties, हमने उसको एक estimate किया, और estimate करके अगर कोई provision था हमने कर दिया, but there is no, it is an indication of the value which exists at the balance sheet date. Subsequent values may differ if the situation changes, क्योंकि हमने आज एक situation पे analyze किया है. You know, 20 is a very dangerous balance sheet followed by 21. ऐसा हो सकता है कि हमने 20 में debtors दिखाए हैं, हमने 20 में stock दिखाए हैं, अब वो debtor जो है आज सही है, given the condition maybe वो next 6 months में collapse हो जाएगा. मैंने we are very certain that ऐसा बहुत सारा situation होने वाला है where industry, where business will collapse. तो मेरा आज हमने जो good दिखाया है debtor को, वो March 21 में good से एकदम सीधा bad हो जाए. हमने जो stock दिखाया है कि आज हमने दिखाया these are moving stock, हमने उसमें कोई provision for obsolescence नहीं किया है. अब जैसे mall है, mall में जो stock है, mall अब खुला, अब वो बोलेगा भाई मेरा तो all good stocks है, but 31 मार्च को स्टॉक गुड था, आज भी हो सकता है वो स्टॉक गुड है, अब वो बिक नहीं रहा है, तो मे बी अनदर 3 मंथ, 5 मंथ, 8 मंथ जाके वो सारा का स्टॉक ऑब्सोल्यूट हो जाएगा. तो जब ऑब्सोल्यूट हो जाएगा तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर उसको 50, 60, 70% डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा. आई हैव अ क्लाइंट विच इज इन लेदर वेयर, वो फुटवेयर में, तो उसका जो आफ्टर 2.5 मंथ्स वो मॉल खुला, तो मॉल खुला तो आपका सारा शूज का कंडीशन खराब हो गया, तो अगला बोला हम इसको ठीक ठाक करके अभी भी बेच सकते हैं. But at the same time, he said, I understand there is a very low probability that I'll able to sell all these inventory within even in the next 2-3 months. And हमको इसमें substantial discount देना ही पड़ेगा माल को, स्टॉक को क्लियर करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाएगा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी खराब हो जाती है. ऑलरेडी 2-2.5 महीना मॉल में बंद होने के कारण, थोड़ा सा डैम्प के कारण ये खराब हो गया, तो आगे भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम नहीं बेच पाएंगे. तो भी इम्प्रेस अपॉन द क्लाइंट कि आपको प्रोविजन करना चाहिए इसमें. तो अब कई क्लाइंट अग्री करते हैं, कई नहीं करते हैं. अगर नहीं करते हैं तो वी हैव टू फाइंड आउट कि वेदर वी हैव सिचुएशन व्हिच वी कैन क्रिएट एंड कंपेल देम कि नहीं भाई ये सिचुएशन है, आपको तो ये करना ही पड़ेगा. तो अगर हम क्रिएट कर पाए एविडेंस तो ठीक है, नहीं कर पाए तो भी क्लाइंट को इंप्रेस करना होगा कि भाई आपका 20 और 21 तो हेवियर हो जाएगा. नाउ देन देयर इज अगेन अ कंसेप्ट ऑफ एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, कि हमारा जो बैलेंस शीट है जो हमने बताया कि उसमें जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो 31 मार्च का है. हम बैलेंस शीट साइन कर रहे हैं 26 जून या 30 जून. अप्रैल से जून तक अगर हमको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण इसका इंपेयर हो गया है एसेट्स का वैल्यू, देन अगेन हमको उसका बैलेंस शीट में इफेक्ट देना पड़ेगा. बट मान लीजिए कि कोई ऐसा है ट्रांजैक्शन विच इज सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट, विच इज नॉट एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट. आज के दिन हो सकता है कि उसने कोई को मई में सेल किया, जून में सेल किया, एंड वी कम टू नो, एंड इसका हमारा मार्च से कोई रिलेशन नहीं है, और वी कम टू नो कि उसका कोई यूनिट से सब्सटेंशियली डैमेज हो गया, कि जैसे अम्फन आया आफ्टर मार्च, इसके कारण इन्वेंट्री सारी की सारी डैमेज हो गई. कई ऐसी थी कपड़े की जहाँ पे इन्वेंट्री सब्सटेंशियली डैमेज हो गई, तो वो क्लाइंट बोलेगा कि भाई देखो 31 मार्च को मेरा सही था, जो हुआ वो अम्फन के कारण हुआ. तो इट इज देन देयर विल बी डिबेट फॉर एन एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट. तो अगर एडजस्टिंग इवेंट है तब तो हमको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा बुक्स में. अगर एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, से फॉर एग्जांपल, एंड समथिंग हैज हैपेंड सब्सिक्वेंट टू बैलेंस शीट डेट which is a non-existing event, then उसका भी हमको, and it has an impact on material impact on financial statements, तो हमको उसका भी disclosure देना पड़ेगा financial statement में. Now हमको ये भी देखना पड़ेगा कि subsequent to balance sheet 31st March till date ऐसा क्या नया चीज हुआ है, because all clients are raising resources. तो अब क्वेश्चन है कि if they are raising resources by way of bank loans, by way of credit facilities, तो what makes them raise those resources? तो ऑब्वियसली ये है कि भाई दे आर रेजिंग रिसोर्सेज बिकॉज दे से कि हमारे को कॉस्ट इनकर करना है, आई हैव टू फंड द लॉसेस, और ये भी है कि माय रिकवरी पीरियड ऑफ डेटर विल स्टैंड एक्सटेंडेड. बहुत सारा क्लाइंट है, बहुत सारा डेटर पेमेंट नहीं कर रहा है, तो मेरे को वर्किंग कैपिटल के लिए हमको पैसा चाहिए. बट देन वी हैव टू मेक एन असेसमेंट कि उसको सिर्फ रियली वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, रियली ये 2 महीना का जो लॉस हुआ है on account of say rent, employee cost, उसके लिए चाहिए कि किसके लिए चाहिए. तो again this is very very important.
ना से कोई का क्लाइंट का हमारा रेंट पे लगा हुआ है प्रेमाइसेस, नाउ अब वो फोर्स मेज्योर क्लॉज इन्वोक करेगा कि भाई मार्च में लॉकडाउन हो गया तो हम लॉकडाउन पीरियड का रेंट नहीं देंगे, से फॉर एग्जांपल। तो अब लॉकडाउन कुछ मार्च में भी है, तो वी हैव टू गो गेट दोज एग्रीमेंट्स एग्जामिन्ड कि हाँ भाई ये जो फोर्स मेज्योर है, वेदर कोविड-19 कम्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ फोर्स मेज्योर, और एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट कि इस पीरियड में वो रेंट का पेमेंट नहीं करेगा या उसको रेंट का पेमेंट नहीं मिलेगा। सो दीज आर अगेन वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स वी नीड टू एग्जामिन। तो हमको एसेट लायबिलिटी, इवन नेक्स्ट ईयर का परफॉर्मेंस, events between the date of balance sheet and 31st March till the date of balance sheet, all हमको examine करना होगा to find out कि what all have a bearing on financial statement. इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर हमारे बुक्स में इन्वेस्टमेंट है, वो ग्रुप कंपनी में है, तो नॉर्मली मैंने गोइंग टाइम्स में हम लोग उसको ओवरलुक कर लेते हैं, ठीक है भाई बैलेंस शीट है कोई। बट अगर अभी मेरा क्लाइंट ऐसा इंडस्ट्री में विच इज वेरी क्रिटिकल, जहाँ सर्वाइवल का बड़ा क्वेश्चन है, से आपका लेट मी से लाइक ऐसे ट्रैवल है, टूरिज्म है, देन देयर आर नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज, जैसे आपका शॉपिंग मॉल्स में उसका शॉप्स है, तो जहाँ सर्वाइवल इज अ क्वेश्चन एंड देयर विल बी अ सब्सटेंशियल इंपेयरमेंट इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑल मस्ट बी कंसिडर्ड। नाउ अब हम ऑडिट रिपोर्ट में क्या करेंगे, लाइक इन कारो वी सेड कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद फिजिकल वेरिफिकेशन, जो प्रोसीडियर परफॉर्म नहीं हुआ, तो आप ऑडिट में रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन भी देंगे और आप उसमें कारो में भी कमेंट करेंगे। डिस्प्यूटेड ड्यूज, repayment of dues to banks, financial institution, NBFC, वो कारो का भी क्लॉज में है that we have discussed, उसको हम कैसे कवर करेंगे। Now मैनेजमेंट एक assertion देता है as we have said in the financial statements कि हमने जो भी, जैसे हमने कहा कि इम्पेयरमेंट जो बैलेंस शीट में प्रोवाइड किया है और बेस्ड ऑन प्रॉपर इवेल्युएशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स उसका फ्यूचर्स को देखते हुए किया है। एंड हम एज एन ऑडिटर in the we have a paragraph called emphasis of matter paragraph, तो हमको emphasis of matter paragraph के थ्रू इस मैनेजमेंट का assertion जो नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिया है, we should draw attention, और हमको भी ये बोलना चाहिए कि भाई देखो मैनेजमेंट ने ये सारा इवेल्युएट किया है एंड दिस इज द हैविंग रिगार्ड टू एवरीथिंग, जो बैलेंस शीट में वैल्यू है, इट इज द बेस्ट estimate of reflection of the value of assets and liabilities in the balance sheet, because this is very very important. Auditor needs to draw attention to the stakeholders in relation to these assertions. अब बाकी का हमने जैसे कहा कि जो प्रोसीडियर्स है परफॉर्म करना बिटवीन बैलेंस शीट एंड द डेट ऑफ बिटवीन 31st March एंड डेट ऑफ साइनिंग फॉर एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग, हमको उसको भी करना है। अगर कोई एग्जिस्टिंग है उसको हमको प्रोवाइड करना है, अगर कोई नॉन एग्जिस्टिंग है तो हमको इंश्योर करना है कि मैनेजमेंट उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दे और हम उसको ऑडिट रिपोर्ट में कैप्चर करें इन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। So these I think were some of the broad points. So the time allotted to me is now over. So now I over to Tarun and Pramod ji. थैंक यू मोहित जी। प्रमोद जी आप भी अनम्यूट है। प्रमोद जी इसमें रिगार्डिंग, हेलो हाँ प्रमोद जी बोलिए। मोहित, हाँ प्रमोद, हाँ बोलिए। ये अपने को कोई जनरल नोट बनाना चाहिए कि ऑडिट के अंदर में टू कवर, क्योंकि आज फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरीज है जहाँ पर परपेचुअल सिस्टम चलता है बहुत से क्लाइंटों के यहाँ पर, या जहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन एट द ईयर एंड होता है, और जहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन परपेचुअल होता है एंड वे नो कि यहाँ पर सिस्टम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन इज प्रॉपर, उस वक्त में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इवन इफ 31st मार्च को नहीं वेरिफिकेशन हुआ, फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, इसके बाद में भी नहीं हुआ, उस केस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? नहीं ऑडिटर का यू सी, अभी मैं एक चीज बोलना भूल गया, इंस्टीट्यूट ने कोविड पे 4 मटेरियल इशू किया है, वन रिलेटिंग टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, वन ऑन गोइंग कंसर्न, वन ऑन की ऑडिट मैटर। तो उसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो इंस्टीट्यूट इज आल्सो स्ट्रेस्ड, और जो गाइडेंस नोट ऑन कारो है या गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट ऑफ इन्वेंटरीज है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ऑल मटेरियल आइटम्स of all items every year is a must, and physical verification of material items may be more
may be done more than once also. Now say company perpetual करता है, तो आज 31st मार्च को जो इन्वेंट्री को फिजिकली वो वेरीफाई किया था अंडर परपेचुअल सिस्टम, हो सकता है वो इन्वेंट्री हो ही नहीं, राइट ना, वो नहीं हो सकता, नहीं वहाँ राइट नहीं। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है ऑडिटर का, मैनेजमेंट को थ्रस्ट करना कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन करो, मे बी आप आज के दिन करो, 26 जून है आप आज के दिन करो। ऑब्वियसली अधिकतर क्लाइंट बोलेगा मेरा 24 मार्च से लेके से 20-22 मई तक हम तो ऑपरेट ही नहीं कर रहे थे या हमारा फैक्ट्री बंद था, तो आप आज के दिन फिजिकल वेरिफिकेशन करो और हम फिर वो रोल बैक प्रोसीजर्स को जाके करेंगे। आज के दिन इसलिए और इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा हो गया बिकॉज हमको काउंट नहीं, हमको उसका कंडीशन भी देखना है, प्लस वो मूविंग है नॉन मूविंग है। मेरे ख्याल से फिक्स्ड एसेट रजिस्टर तो सब मेंटेन, सॉरी फिजिकल वेरिफिकेशन रजिस्टर तो फिजिकल इन्वेंटरी रजिस्टर सब मेंटेन करते हैं, तो उसमें तो परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस, स्टॉक रजिस्टर करने में सब आ ही जाता है। तो रोलबैक से ज्यादा मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी है कि इन्वेंट्री की कंडीशन क्या है, क्योंकि जहां पर पेरिसेबल प्रोडक्ट्स है और जहां जो तुमने कहा लेदर आइटम्स है, लेदर आइटम में सब में फंगस लगी 2 महीने के अंदर में, वो बिक ही नहीं सकता कोई हालत में 100%। या गारमेंट्स भी है, गारमेंट ऑफ स्टॉक हो जाता है। आज समर वेयर का, विंटर वेयर का जो लगता था मार्च महीने के अंदर में सेल, वो तो सेल खत्म हो गई और मार्च महीने के अंदर में सपोज करो कि विंटर या ये जो बसंत ऋतु का जो है प्री समर स्टॉक है, वो तो ऐसे 70% डिस्काउंट में बिकेगा। प्री समर स्टॉक की आज वैल्यू क्या, कोई वैल्यू नहीं है, नेक्स्ट ईयर के अंदर उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। करेक्ट, तो उसी के लिए कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो उसी के लिए क्या किया कि जैसे लेट अस टेक अ थ्योरेटिकल केस की जैसे गारमेंट बोला, अब गारमेंट का उसका से 10 करोड़ का स्टॉक है, ठीक है। अब नॉर्मली ये लोग 3 महीना 4 महीने का स्टॉक रखते हैं, ऑलमोस्ट 3 महीना तो माल बिका नहीं। अब अगला को ये पूछना होगा कि तुम्हारा जो 10 करोड़ का स्टॉक है, अब आज के दिन अपन क्या धारा निकालते हैं कि 10 करोड़ का स्टॉक कितना दिन में बिकेगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट से एक एस्टिमेट दिया कि हर महीना हम 3 करोड़ बेचते हैं, नेक्स्ट 2 महीना हम 1.5 करोड़ ही बेच पाएंगे, उसके बाद हम 3 करोड़ बेचने लगेंगे, ठीक है। अब हम ये बोलेंगे कि भाई गोइंग बाय पास्ट, अगर तुम्हारा मटेरियल 3 महीना या 6 महीना पुराना हो जाता है तो तुम 10% डिस्काउंट में देते हो, ठीक है। तो अब तुमने जो सेल प्रोजेक्शन किया कि 1.5 फिर 3 करके हम 10 करोड़ का क्लियर कर लेंगे, तो अब तुम्हारा इन्वेंट्री तो 6 महीना पुराना हो जा रहा है, तो अगेन तो तुम्हारा जो रिकवरेबिलिटी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है, देयर इज अ एविडेंस टू से दैट कि 31 मार्च को तुम रियलाइज नहीं कर पाओगे वो पैसा, तो तुम उसको ऑब्सोलेंस के लिए प्रोवाइड करो, करेक्ट। अब ये जो बोला कि करना ही पड़ेगा, जैसे होटल है, अगर होटल में आइटम्स है पेरिशेबल है, वो तो खत्म हो गया, तो बाकी खत्म। 31 मार्च को उसके आज खाना पीना फूड स्टॉक बचा हुआ है। अब कई चीजें होता है, दूध है, कई चीज है जो जिसका लाइफ है 15 दिन 20 दिन 1 महीना, हो सकता है वो सब एक्सपायर हो गया होगा, तो आपको उसको करना, तो वो इसीलिए रहा ना कि अगर हम फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो हमको कंडीशन का भी नहीं पता चलेगा, मूविंग नॉन नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए इन्वेंट्री तो बहुत क्रूशियल है इस बार। हाँ, और इसमें क्या है ना, इस बार अगर अपने ऑल्टरनेट प्रोसीड्यूर करने के बाद में अगर सपोज को इन्वेंट्री से सेटिस्फाइड भी है, तो हम लोग को बैलेंस शीट में नोट भी दे देना चाहिए ना कि वे या अपने ऑडिट रिपोर्ट में तो कुछ जाएगा नहीं नोटिस में, लेकिन मैनेजमेंट शुड गिव अ नोट ऑन द कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री इन द नोट टू अकाउंट। नहीं, मैनेजमेंट क्या है, एक जनरल देगा असर्शन कि भाई हमने जितना मेरा बैलेंस शीट में है इन्वेंट्री, सन्डी डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, ऑल एसेट्स का हमने एक असेसमेंट किया है, और हमने असेसमेंट करने के बाद जितना इम्पेयरमेंट करना था हैविंग रिगार्ड टू माय फ्यूचर फोरकास्ट, हमने सारा का सारा हैविंग रिगार्ड टू द प्रेजेंट कंडीशन फ्यूचर, हमने सारा का सारा प्रोविजन कर लिया है इसका, और ऑडिटर इसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर दे देगा। ये बहुत जरूरी है। एम्फेसिस ऑफ मैटर में तो स्टिल शुड गिव द नोट क्या? यस, वो जो नोट देगा मैटर में देना चाहिए। हां, यस, हम लोग इसके लिए रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे अगर आपने टाटा मोटर्स से या केयर का या फिर से माइथन अलॉयज, ये सब का अगर रिजल्ट देखेंगे, और इवन इंस्टीट्यूट का जो अभी जो कोविड पे गाइडेंस दिया है, इंस्टीट्यूट भी ये बात बोला है कि आपको इसको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के थ्रू अटेंशन इनवाइट करना चाहिए, और अधिकतर सब कंपनी ये कर रहा है, अधिकतर हम ये जो टाटा मोटर का मैंने देखा किया है, केयर किया है, माइथन अलॉयज किया है रिजल्ट्स में, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये करना ही पड़ेगा। मतलब मेरे ख्याल से इस बार इन्वेंट्री और सन्डी डेटर दीज आर वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि मार्च 20 में और मार्च 21 में मार्च 20 में तो हो सकता है ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है, मार्च 21 में
मैसिव इम्पैक्ट ह्यूज इम्पैक्ट आएगा, ह्यूज इम्पैक्ट। तो ट्रैवल इंडस्ट्री बोल रहे हो, हमारे क्लाइंट है, उनके ट्रैवल इंडस्ट्री है, 2 करोड़ रुपए का बैड डेट्स आज के दिन में मिनिमम, पूरा रिजर्व साफ हो जाएगा। तो वही बोला ना, अब उसका गोइंग कंसर्न, अब ये सब करने के बाद अगर हमको लगेगा कि उसका गोइंग कंसर्न है, आज के दिन ट्रैवल इंडस्ट्री में अगर उसका ओन पैसा है, तब तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन फिर भी एक हो सकता है कि ठीक है हम नेक्स्ट 3 महीना 4 महीना नहीं परफॉर्म करेंगे, बट मेरे पास रिसोर्सेज है। बट कोई डेट में है, ह्यूज डेट में है, और वो नेक्स्ट 3 महीना 4 महीना नहीं परफॉर्म करेगा, हम उसका बोलेंगे भाई तुम हमको प्रोजेक्शन दो नेक्स्ट 2 साल 3 साल का, तो उसका तो मतलब आज करंट ईयर का बैलेंस शीट लॉस में, देन हाउ विल यू फंड द लॉस? तो अब वो नहीं बोल सकता हम पैसा रेज कर लेंगे, दिस इज नॉट अ थिंग, इट मस्ट बी टेंजिबल, ही मस्ट गिव सम टेंजिबल एविडेंस टू प्रूव मी कि नहीं हमारे पास 31 मार्च को है एविडेंस, या आज के दिन हम आपको नॉट 31 मार्च ऑडिट के टाइम आपको ऑडिट एविडेंस दे रहे कि यस है, वरना अगर उसका आज के दिन नेगेटिव नेटवर्थ है देन, और मेरे को लगता है देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, अब तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन गोइंग कंसर्न इज आल्सो नॉट वैलिड। तो अच्छा, एक चीज में थोड़ा सा, हाँ बोलो, एक चीज चाचा और गाइड करो, जो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी जो लोकल क्लाइंट्स हैं, उन सबों का एक प्रोसीड्योर जरूर कर देना, डॉक्यूमेंट जरूर कर देना चाहिए आज के दिन में ईच एंड एवरी पर्सन ऑडिटर को। हेलो हेलो आवाज, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज तो मुझे आवाज नहीं आ रहा है, तो ये आई कुड नॉट हियर नहीं, यू, मैं कैन यू कम बैक अगेन? तरुण तुम बोल दो, मैं हाँ। बोल रहा हूँ। एक जैसा मोहित को बोलो, गाइड कर दे पार्टिसिपेंट को कि इस साल जो फिजिकल वेरिफिकेशन एटलीस्ट, हाँ तो एज ऑफ नाउ आज के दिन में एवरी क्लाइंट के यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन सब्सटेंसिव करके उसको डॉक्यूमेंट कर लेना चाहिए ना। हेलो, डेफिनेटली मैं तो बोलूंगा बेसिकली, अगर देखिए 2-3 तरह के क्लाइंट होते हैं, 2-3 तरह के क्लाइंट है। एक है जो अपना पैसा से करता है, तो वहां पे क्या ऑडिट रिस्क कम है, ठीक है। एक है कि जो बैंक बोरोइंग्स बहुत है, और या फिर उसके पास थर्ड पार्टी पैसा, मतलब पब्लिक मनी से काम कर रहा है। जहां पब्लिक मनी से काम कर रहे हैं वहां हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या पब्लिक मनी से नहीं काम कर रहे हैं वहां भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरा, हम लोग ये एकदम इस बार कर रहे हैं कि स्टॉक सैंडिडेटर्स और स्टॉक सैंडिडेटर्स, अगर एनबीएफसी है तो लोन, ये जो 3 आइटम है ना, इसका हमको है कि मार्च 20 और 21 में बहुत बड़ा वेरिएशन हो सकता है। तो नॉट ओनली डॉक्यूमेंट्स, हमको जो भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है, जैसे हमने कंफर्मेशन का बोला, तो क्लाइंट ने सारा कंफर्मेशन भेजा, मेल से सारा भेजा मेरे को, उसने किया, उसको बोला कि भाई इनको डायरेक्ट भेजो। अब 7 दिन तक नहीं आया, हमने कहा भाई तुम फोन से फॉलो अप करो, तुम तो पैसा के लिए फॉलो अप करते हो, तो कंफर्मेशन के लिए भी करो। उसने फॉलो अप किया, फॉलो अप करके जब जिसका नहीं आया उसको सेकंड टाइम किया, तो ठीक है 2 बार हो गया तो मेरा काम खत्म। उसे हम बार बार तो उसको 7 बार तो बोलेंगे नहीं, 2 बार हो गया काम खत्म। अब हमने इसका कंफर्मेशन आ गया, तो वहां जो डिफरेंस है वो क्लाइंट रिकंसिलेबल है, तो रिकंसिल करके एडजस्ट कर दिया। अगर ये है कि भाई उसने पेमेंट भेजा था, हमको पेमेंट नहीं मिला, बाद में मिला, वो सब तो ठीक है। अब लास्ट है कि कल को वो नहीं भेजा कोई कंफर्मेशन, तो हमने ऑल्टरनेट प्रोसीजर किया कि भाई आपका जो बुक्स में डेटर है, आपने उसको माल बेचा था, अगर बेचा है तो उसका हमको सेल इनवॉइस एविडेंस की उसको माल मिल गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम सारा ऑल्टरनेट प्रोसीजर, अगेन हम आई एम टॉकिंग ऑफ मटेरियल डेटर्स, नॉट ऑल डेटर्स, मटेरियल डेटर्स। नेचुरल मटेरियल। बट हमने क्लाइंट को क्या कहा कि भाई तुम ये चेष्टा करो, इस बार, हर बार हम तुमको 50-60% बोलते थे, इस बार हम 50-60 नहीं बोल रहे हैं, इस बार हम तुमको बोल रहे हैं कि सब्सटेंशियल तुम डेटर्स को कवर कर लो। तो तुमको तो कंफर्मेशन भेजना है, ये नहीं है कि तुमको हम बोलेंगे 10,000 20,000 को भी, बट तुम नॉट 50-60%, सब्सटेंशियल डेटर्स को कवर कर लो, सो दैट मे बी मेरे को 80-90% इन वैल्यू कर दो, कवर कर दो, थोड़ा छोटा भी कर दो, बट 80-90% इन वैल्यू कर दो। तो अभी तक क्लाइंट माने मोर और लेस अग्रीएबल है, क्योंकि अब उसको भी ये है कि एक चीज हमने क्या समझाया कि भाई देखो आज के टाइम में तुम्हारे को भी जरूरी है कि अपना बैलेंस कंफर्म करा के रख लो, कल को पैसा नहीं देगा तुमको भी केस करने के लिए चाहिए, और कल को आज वो बोल दिया ठीक है, बाद में बोल देगा ये डैमेज हो गया, नहीं होता, थोड़ा क्लाइंट को आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि भाई आईबीसी है, आपको पता है आईबीसी से पैसा आ जाएगा,
1 साल का तो बात है, कल को वो डिस्प्यूट खड़ा कर दिया ना बाद में जाके, जब उसका पोजीशन खराब हो गया कि नहीं आपका मटेरियल खराब था, तो आप आईबीसी में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि डिस्प्यूट हो गया तब तो फिर आईबीसी में होगा। तो थोड़ा क्या है ना, अपने को स्टोरी बनाना पड़ता है मैनेजमेंट के साथ, तब मैनेजमेंट को भी लगता है हाँ बात तो सही है, ये बोल रहे हैं। जिसका झूठा डेटर होगा वो तो भेजेगा नहीं, बात है, क्योंकि जिसका डेटर सही होगा वो बिल्कुल भेजेगा, हाँ ये बात तो सही है। चलो मैंने रेदर ये हो कि हम तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस पाए कि हाँ बात तो इनका सही है, अपने को कंफर्मेशन ले लेना चाहिए कि कल वो आज के दिन कंफर्म कर देगा तो कल को वो डिस्प्यूट नहीं कर सकेगा कि भाई आपका माल खराब था या माल मिला नहीं या ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमारे हित में ही है। इस तरह से हर क्लाइंट को समझाना पड़ेगा कि भैया आपका इतना बड़ा बोरिंग है, ठीक है, अब आप तो प्रोविजन नहीं कर रहे हो डेटर का, अगला साल इतना बड़ा हिट ले लोगे। आज आप जो हिट ले रहे हो तो सबको पता है कि भाई 11 दिन 12 दिन का माने अगर 11 दिन लॉकडाउन था तो सिंपल है, 90 दिन में 11 दिन का सेल नहीं हुआ, तो अगर हम रोज का 1 करोड़ माल बेचते थे तो हम 90 करोड़ की जगह 79 करोड़ बेचे। हमने कहा रेदर तुम तो ये बैंक को बोल सकते हो कि भाई अगर हम रोज का 1 करोड़ का माल बेचते थे तो 90 दिन में मेरा 11 दिन जो लॉस हुआ 11 करोड़ नहीं, मेरा 22 या 25 करोड़ का लॉस हुआ, क्योंकि लास्ट 7 दिन 10 दिन में सबसे ज्यादा सेल होता है बेसिकली। लास्ट 7 दिन 10 दिन बहुत क्रूशियल है, तो इसके कारण मेरा सेल बहुत हिट हो गया, मेरे को कारण लॉस हो गया। तो तुम जो है जो प्रोविजनिंग है तुम उसको जो अगला साल भी कर रहे हो वो इसको इस साल भी तुम शिफ्ट कर सकते हो, यू नो। तो ऐसे कर करके क्लाइंट को कन्विंस करना पड़ता है थोड़ा सा कि भाई इंपॉर्टेंट है इसकी यू हैव टू बी कंजर्वेटिव। अगर हमको प्रोविजन 10 करोड़ करना है उसकी जगह में 11 करोड़ भी कर दिए तो दैट इज नॉट अ बिग इशू, नॉट अ बिग इशू। बट हमको 10 करोड़ करते हैं 5 करोड़ किए तो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अब 20 भी हम साइन करेंगे 21 भी हम साइन करेंगे बैलेंस शीट, तो ऐसा नहीं हो कि 21 में शेयर होल्डर लोग या बैंकर हम पे चढ़ जाए कि क्या हो गया ये, यू नो। तो ये बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है, 20 21 में दोनों में बहुत जरूरी है बैलेंसिंग करना। राइट। और पब्लिक इंटरेस्ट एक्टिविटीज में जो नफरा का रिक्वायरमेंट आया है ना, हम तो देवाशीष का बोला था कि भाई व्हाट इज दिस, वो जिस तरह से डॉक्यूमेंट मांग रहा है हम लोग से कि आपको माने जैसे कि अगर अभी ऐसा है कि अगर तुम्हारा नफरा रिलेटेड एंटिटी है और नफरा ने उसको सेलेक्ट कर दिया रिव्यू के लिए और उसको तुमको डॉक्यूमेंट मांगने देगा, तो तुम्हारे पास सारा का सारा डॉक्यूमेंट नफरा को सीरियली नंबर करके पीडीएफ में या जेपीजी जो भी फॉर्म में एक ही बार दे सकते हो, वो दोबारा भी नहीं लेगा उसको। तो अब रहा कि मतलब डॉक्यूमेंटेशन स्पेशली पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज के लिए तो बहुत, जहाँ नफरा है वहां तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो नहीं भी है और जो पब्लिक लिस्टेड नहीं है या नफरा में कवर्ड नहीं है वहां भी अगर खाली बैंक्स भी है तो भी हमको देखना पड़ेगा। कल को ऐसा ना हो कि बैंक पार्टी डिफॉल्ट करे तो बैंक पीछे ऑडिटर के भी लग जाए, क्योंकि आज के दिन अनयूजुअल नहीं है ये सब चीज। तो 20 और 21 में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और एक मेरे को ये भी लगता है अभी क्या है, जून हो गया, हम लोग बहुत सब डिस्टर्ब्ड है, आई थिंक ऑल ऑफ अस आर डिस्टर्ब्ड कि जून में हार्डली ज्यादा कुछ ऑडिट हुई है, ठीक है। अब मेरे पास जुलाई अगस्त 2 महीना खाली बचा है, जून खत्म हो गया फॉर कंपनी ऑडिट। आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल टू डू कंपनी ऑडिट विद इन 2 मंथ्स, क्योंकि यूडीन तो हमको निकालना पड़ेगा और मान के चलते सबको 21 दिन का एजीएम करना है तो 5-6 तारीख तक तो बैलेंस शीट साइन होना ही पड़ेगा। तो 2 महीना में ऑडिट होना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। तो मेरे आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सस्पिशन, माने स्ट्रॉन्ग दिस टू बिलीव दैट कि गवर्नमेंट ये जो एजीएम का डेट है इसको भी सितंबर से दिसंबर करेगा। वी वुड हैव एक्सेप्टेड कि अभी वो अनाउंस कर दे। अब जैसे लिस्टेड कंपनी का भी है, 2 दिन पहले वो आके जून को जुलाई किया, अगर ये 1 महीना पहले बोल देता तो वी वुड हैव यू नो लॉट ऑफ बिडिंग स्प्रेस। बट वो अभी भी जो है वो अगस्त में आके बोलेगा कि हम एजीएम का डेट दिसंबर कर रहे हैं। तो ऑडिट के मामले में इस साल एक होता है ना कि टाइम बैलेंसिंग करने के चक्कर में ऑडिट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं इस बार, ये थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना। नहीं, ऑडिट कंप्रोमाइज कर दिए तो ऑडिटर साफ हो जाएगा नेक्स्ट में। हाँ, ऑडिट क्वालिटी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, ऑडिट नेक्स्ट साफ हो जाएगा अगर ऑडिट क्वालिटी अगर इंपेयर कर दिया तो। Because so हाँ, much तो of ये responsibility is there. Even for the smaller companies, the responsibility is huge. Forget about yes, the big yes. companies. Even for the smaller companies. Yeah, one point. I just याद है 1 point. We must give a note in the balance sheet कि हमने जो ऑडिट किया है, सारा जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, these are through डिजिटल मीडियम। क्योंकि अभी क्या हम लोग भी लिए थे अपने फाइनेंशियल में कि सारा का सारा चीज तो हम ईमेल से मंगाए थे, ठीक है ना। और उसने हमारे को सॉफ्टवेयर का एक्सेस दे दिया यहाँ से कि आप सॉफ्टवेयर को आप एक्सेस कर सकते हैं, वो उसका क्लाउड में था तो आप सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, व्यू राइट्स है।
वो दे दिया था, प्लस जो भी डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए था उसने सारा ईमेल से भेज दिया। तो हम लोग एक बैलेंस शीट में नोट दिया है ऑडिट रिपोर्ट में कि हमने जो ऑडिट किया है, जो भी ऑडिट एविडेंस है, दैट हैज कम थ्रू डिजिटल मीडियम। तो हम ओरिजिनल नहीं देखे, हम सब डिजिटल मीडियम के थ्रू डॉक्यूमेंट्स को मंगा के ये देखे। अपने ऑडिट रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर में देंगे क्या? यस, एम्फेसिस ऑफ मैटर में देंगे। एम्फेसिस ऑफ मैटर में मैनेजमेंट भी यही बोलेगा। हाँ, एम्फेसिस ऑफ मैटर नहीं, इसको अगर ये मैनेजमेंट देता है तो वही emphasis, भी था ना। अगर मैनेजमेंट भी यही नोट देता है, मैनेजमेंट नहीं देगा नोट ये, तो हमको अदर मैटर में देना पड़ेगा। अदर मैटर में देना पड़ेगा, अदर मैटर्स में चला, नॉट ऑन एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर। नो, बट जहाँ पर इस टाइप की सिचुएशन है, वहां पर जहाँ पर सिचुएशन नहीं है वहां कोई जरूरत नहीं है। हाँ, डेफिनेटली। नॉर्मली आज के दिन आउटस्टेशन ऑडिट में ये सिचुएशन है। हाँ, लोकल ऑडिट में तो ठीक है, सिचुएशन नहीं है। तो सिचुएशन नहीं है। राइट। मुद्रा जी, कोई और भी अगर बोलना चाहे, कोई नहीं, हमें को कोई दूसरे पार्टिसिपेंट कोई भी क्वेरी करना चाहे तो प्लीज दे शुड रेज द क्वेरी। इट इज अ ग्रुप डिस्कशन, नारायण others will also put out of their query. टेक्निकल जी। हेलो, हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हेलो, बोलिए। हाँ बोलिए टेक्निकल जी। हाँ हेलो, हाँ तरुण जी, हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए। आप बोलो। मैं बोल रहा था, जैसे जनरली क्या होता है कि मैनेजमेंट बोलता है कि जो मेरा बैलेंस शीट में जो भी करंट एसेट्स है, वो जो वैल्यू दिखाया हुआ है वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से है, एंड देयर इज नो इम्पेयरमेंट इन दैट। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? मुकेश जी देखिए, नंबर वन, बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू पे नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं, हम मार्केट इंडियन वैल्यू गैप नहीं, रियलाइजेबल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से वो रियलाइजेबल वैल्यू है पूरा, एंड उसका जो रियलाइजेबल वैल्यू होगा वो बैलेंस शीट वैल्यू से कम नहीं होगा। नहीं, वो तो मैनेजमेंट एक होता है ना कि इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड करंट एसेट्स, loans and advances are realizable at the values at which they are stated in the ordinary course. मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं उसका ही बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट का असर्शन देने से कुछ नहीं होगा, आपके पास भी ऑडिट एविडेंस होना चाहिए ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि जो मैनेजमेंट बोल रहे हैं वो सही है। लेट अस टेक फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कोई इन्वेंट्री है, ठीक है, अब वो इन्वेंट्री आपको मालूम है कि ये सब इन्वेंट्री ऑब्सोलीट और एक्सपायर हो गया है। अभी जैसे हमने वो प्रमोद जी ने गारमेंट का बात बोला, लेदर का बात बोला कि मॉल है, तो वो तो अपने को मालूम है कि भाई ये जो है आपका माल अगर 3 महीना पुराना हो जाता है तो आपको 10% डिस्काउंट देना पड़ता है, ठीक है। तो आपके पास तो एविडेंस है विच शोज कि देयर इज एन इम्पेयरमेंट इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। मैनेजमेंट तो स्टेटमेंट देगा, बट ऑडिटर को भी ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि भाई ये जो वो बोल रहा है सही है या गलत है, बेस्ड ऑन ऑल्टरनेट ऑडिट एविडेंसेस। अगर मैनेजमेंट नहीं है, देन द ऑडिटर हैज टू क्वालिफाई द रिपोर्ट। हेलो, हेलो। हाँ बोलिए शर्मा जी, बोलिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जिन्होंने भी लोन ले रखा है वो मॉरिटोरियम पीरियड, वो जैसे जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है, तो अपने जैसे करंट मैच्योरिटीज में सिर्फ 2 पीरियड का जो भी नेक्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स देना है, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज अ क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, मॉरिटोरियम पीरियड उसको मिला हुआ है, तो करंट मैच्योरिटीज में तो अपने जो नेक्स्ट ईयर में देना है बस उतना ही देंगे। अब उस कंपनी के मैक्सिमम जो स्टॉक है वो स्टील आइटम्स में है, तो क्लाइंट इज टेलिंग कि भैया मेरा स्टील का भी प्राइसेस हो सकता है कि थोड़ा बहुत लाइक इन टर्म्स ऑफ दैट एज एन ऑडिटर व्हाट इज माय रिस्पांसिबिलिटी इफ द क्लाइंट इज इनटू स्टील आइटम्स, जिसका हो सकता है कि प्राइसेस अभी गिर रहा हो बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बट इन टाइम्स टू कम मे बी ही इज ऑप्टिमिस्टिक कि नहीं हमारे बिकॉज इन्वेंट्री बिल्ट अप हो गया था लास्ट आउटस्टेशन क्लाइंट का मतलब क्या है कि वहां पे लॉकडाउन का इतना इफेक्ट नहीं आया, सो दे हैव बिल्ट अप देयर इन्वेंटरीज। तो उस केस में एज एन ऑडिटर व्हाट इज माय रिस्पांसिबिलिटी बिकॉज अभी 2 महीने में सेल कम है। 2 पॉइंट है, वन इज रिलेटेड टू करंट मैच्योरिटीज। तो क्या है ना, जो मॉरिटोरियम है वो मॉरिटोरियम है कि अगर आपका कोई इंस्टॉलमेंट मार्च में जो ड्यू था, आई थिंक उसके लिए मार्च से जून में जो ड्यू था उसके लिए आपको समय मिला है, करेक्ट? नहीं, और भी क्या है कि इस साल में जैसे उसको ये बोला है कि बिकॉज उसने जो भी था उसमें प्रैक्टिकली 6 महीना इस तरीके का कुछ है मॉरिटोरियम पीरियड। एग्जैक्ट फैक्ट अभी मेरा है बिकॉज ऑडिट इज गोइंग ऑन, सो व्हाट इज योर okay, let us say what do you mean by current maturities.
हमारा करंट मैच्योरिटी में वही आएगा विच इज ड्यू फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च 2021। तो कल को कोई Right. इंस्टॉलमेंट को मोरेटोरियम के कारण वो 31 मार्च 2021 में नहीं आ रहा है से देन इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ करंट मैच्योरिटी, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो क्वेश्चन है रिलेटिंग टू फॉल इन सेल प्राइसेस, तो हमको कंडीशन देखना है इन्वेंट्री का प्राइस ओनली 31 मार्च का। As far as my valuation is concerned, price subsequent to 31st March is a subsequent year. It is a non-adjusting event. वो adjusting event नहीं है. But आपको ऐसा लगा, say for example, कि स्टील है, कोई ऐसा चीज है जिसका कोई डिमांड ही नहीं है, में आगे डिमांड ही खत्म हो गया. Theoretically, it may not be steel, it may be some other item. कि कल को say example है कि ये माल चाइना एक्सपोर्ट होता था. Let us say for example. और आज ये है कि भाई जो चाइना से जितना इसका एक्सपोर्ट ऑर्डर था, सारा का सारा एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो गया, से फॉर एग्जांपल ड्यू टू इंडिया चाइना रिलेशनशिप, और इसका कोई लोकल मार्केट नहीं है या ऑल्टरनेट मार्केट नहीं है, ये जिसको देना था उसी के काम में लगेगा। जैसे होता है ना कि जूता का 2 पेयर बनाया, तो कोई बोला एक पाँव का खाली जूता बना के दो, तो उसको भेजा, तो उसी पे खाली काम लगेगा, दूसरा का काम नहीं लगेगा, एंड वो उसने ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया, या उसने कहा कि भाई हम अपना ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करेंगे, सम रीजन और दी अदर। तो इट मे बी अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, बट आपको इसका बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ऐसा हो गया। बट जो फॉल इन प्राइसेस है, वो तो फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस जिस साल होगा उस साल हम करेंगे। जैसे अगर शेयर्स का लें, तो हम अगर शेयर को वैल्यू करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू, हम 31 मार्च का वैल्यू देखते हैं। हम आज के दिन 26 जून को अगर उस दिन रिलायंस 800 रुपया था, आज 1700 हो गया, तो हमको 1700 से मतलब नहीं है, 800 से हमको मतलब है। ठीक। Any more queries? किसी और पार्टिसिपेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है तो उनको अनम्यूट कर सकते हैं हम लोग। मेरा एक क्वेश्चन है मोहित जी। हाँ, ये जैसे कुछ गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट की बिडिंग से कॉन्ट्रैक्टर्स बिड करते हैं, तो उनका जैसे नेट वर्थ या सेल हम लोग कंसीडर करते हैं ड्यूरिंग। तो अब जो मान लीजिए लास्ट 3 इयर्स या 5 इयर्स का ट्रेंड अगर देखेंगे, तो 19-20 का ट्रेंड तो बहुत डिफरेंट हो जाएगा, एंड सिमिलरली 20-21 का ट्रेंड भी बहुत डिफरेंट होना चाहिए इम्पैक्ट के कारण। तो क्या ऐसा कोई प्रेसिडेंस है कि इन 2 सालों को अपने कंसिडर नहीं करें ड्यूरिंग बिडिंग प्रोसेस? ऐसा कोई डिस्कशन आपके माइंड में आया या नहीं, अभी इसमें आपने बोला तो एक बड़ा वैलिड पॉइंट आया आपका, कि मान लीजिए फिक्स्ड एसेट्स है से, तो हमको तो इम्पेयरमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है बैलेंस शीट में। तो इम्पेयरमेंट इज बेस्ड ऑन व्हाट, माय फ्यूचर कैश फ्लोज। तो आज के दिन ऐसा हो गया कि मैनेजमेंट का 21 का कैश फ्लो इफेक्टेड होगा, 22 में हो सकता है नॉर्मल हो, 22 में हो सकता है वो भी नॉर्मल नहीं हो। तो आदमी मैनेजमेंट क्या इम्पेयरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हर साल करता है बेस्ड ऑन फ्यूचर कैश फ्लो। तो अब वो बोलेगा मेरा 21-22 का कैश फ्लो ठीक है, और प्लस क्या आ गया, चूंकि मेरा 21 में इतना बड़ा सेटबैक हो गया, मे बी 30% फॉल, 40% फॉल हो गया मेरा इन कैश फ्लो, तो मेरे को मार्च 20 का नॉर्मल लेवल आने में अगर 2 साल लग जाए, हो सकता है। तो इसके कारण वो जो फ्यूचर कैश फ्लोज बना के उसको प्रेजेंट डिस्काउंटिंग करता है, तो मे बी that will indicate that there is an impairment in value of fixed assets। तो वो उसको इग्नोर नहीं कर सकता, उसको इम्पेयरमेंट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, मतलब उसको लेना ही पड़ेगा अपने को। ऐसा एग्जांपल मैं ले सकता हूँ से कि एक कोई मशीनरी है, से फॉर एग्जांपल एक मशीनरी है, उसका फाइनाइट लाइफ है, 5 साल का ही लाइफ है, ठीक है, और अगला वो 5 साल में उसका कॉस्ट भी रिकवर करता है, रिकवर करने के बाद कुछ प्रॉफिट बनाता है। तो कल को वो लगेगा कि मेरा 1 साल ये खराब हो जाएगा, हम 50% ही अचीव कर पाएंगे, अगला साल भी हम नॉर्मल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है कि वो जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकालेगा, तो देयर विल बी एन एग्जिस्टिंग ऑफ इम्पेयरमेंट, तो वो उसको इग्नोर नहीं कर सकता, उसको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत आपने मैं मिस कर गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपने किया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिक्स्ड एसेट्स के लिए, इम्पेयरमेंट के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे नेटवर्थ के लिए जैसे हम लोग जैसे जनरली करते हैं कि नेटवर्थ इन द प्रीवियस ईयर से शुड बी पॉजिटिव। अब मान लीजिए 19-20 का टर्नओवर नेटवर्थ मान लीजिए अगर नेगेटिव हो जाए बिकॉज ऑफ कोविड, तो क्या वी कैन बी से समथिंग लाइक कि 18-19 नेटवर्थ और 19-20 व्हिचएवर इज पॉजिटिव?
जस्ट टू सी कि मतलब कोविड का इम्पैक्ट के कारण नेसेसरली वो बिडर डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाए। वो दूसरा चीज है, मैंने आप आईबीसी का कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं क्या? आईबीसी नहीं, हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उनका बिड्स इवैल्यूएट करवाते हैं। ये तो कॉन्ट्रैक्टर्स के मेरे पॉइंट को ऑफ व्यू ये आइडिया नहीं है, क्योंकि अब क्या है ना, टेंडर में अगला बोलेगा मार्च 20 का नेगेटिव नेटवर्क पॉजिटिव होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हाँ मेरा अभी क्या कोल माइनिंग खुला है ना, तो अभी हमारे क्लाइंट्स कोल उसके लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। टेंडर बिड किए थे, वो बिड में सक्सेस हो गए, तो अभी सब वो डॉक्यूमेंट देना है। तो आज ही आया है कि नेटवर्क मेरे को चाहिए मार्च 20 का। मार्च 20 का, अच्छा। मार्च 20 आज ही आया है, मार्च 20 हाँ का हाँ हाँ, चाहिए। वही उसी कॉन्टेक्स्ट में हम बोल रहे हैं। अब मान लीजिए कोई हाँ, बिडर 19 तक बेचारा सही था, अब 20 में आके गड़बड़ हो गया, तो क्या वो 19 पे क्वालिफाई करा सकते हैं क्या उसको? गवर्नमेंट का कोई ऐसे ये रिप्रेजेंटेशन या कोई ऐसा ये सुने आप कहीं पे? ये ये मेरे को आइडिया नहीं है, बट उसने मेरे से 20 का ही मांगा कि मेरे को देना है टेंडर के लिए। कोल इंडिया का मेरे को उड़ीसा में उसको कोई टेंडर में वो पार्टिसिपेट किया था, बिड सक्सेस हुआ है, तो मेरे को राइट सब प्रोमोटर का नेटवर्क देना है, राइट। तो 20 का ही मांगा, आज ही का बात है मेरे ख्याल। आई एम नॉट श्योर, लेकिन नॉर्मली मैं बोलता हूँ जून महीना में ये लोग 20 का नहीं मांगता है, नॉर्मली नहीं मांगता है। लास्ट लेटेस्ट बैलेंस शीट का नेटवर्क मांगता है, तो ये राइट राइट। टेंडर टू टेंडर देखना पड़ेगा। तो जून जुलाई तक मान लीजिए 19 तक चल जाएगा। हाँ, और दूसरा क्या है ना, आपने जो नेटवर्क वाला बात बोला ना, कि जो भी बिडर है ना, वो जो टेंडर देता है वो हमेशा क्या चाहता है कि भाई ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सके। तो कल को ऐसा लगेगा कि मार्च 21 में ही, मार्च 20 में लॉस हो गया, जब हमारा लॉकडाउन सिर्फ 7-10 दिन था, तो मार्च 21 में 2 महीना का लॉकडाउन का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप उसका पर्सपेक्टिव से देखिए, तो वो तो थोड़ा सा आई डोंट थिंक वो कंसिडर करेगा टाइम ऑफ इश्यू, आई डोंट थिंक। सही सही बात है, नहीं, सही बात। थैंक यू सो मच। एनी फर्दर इश्यूज, किसी को कुछ करना है? चलो क्लोज करें। अभिषेक जी कुछ बोलेंगे कि लास्ट क्वेश्चन इनका ले ले? अभिषेक ले जी। लो। हाँ, क्वेरी कंप्लीट जरूर लेना चाहिए। सर ये अभिषेक जी बोलिए। इंटरनेशनल डेटोर्स जो होते हैं, मतलब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में डेटोर है जो आउट ऑफ इंडिया का है एज ऑफ 31 मार्च, तो उनसे बैलेंस कंफर्मेशन का प्रोसेस कैसा करें अपने ऑडिट ईमेल वर्किंग पेपर के लिए? ईमेल से। अच्छा, ईमेल से ही भेज के? यस ओके, तो वो भी क्लाइंट को ही डायरेक्ट भिजवाने को बोले और ऑडिटर को कॉपी में रखें? यस सेम जैसे हम लोग लोकल का करते हैं, सेम वैसे ही? क्लाइंट भेजेगा आपको सीसी करके, और उसमें लिखेगा कि भाई ये कंफर्मेशन जो है आप डायरेक्टली मेरा ऑडिटर को इस मेल आईडी पे भेजो और मेरे को सीसी मार्क कर दो। और इम्पोर्टेंट है कि जब क्लाइंट मेल भेजता है ना, ठीक है, आपको सीसी मार्क करके, तो आपके पास तो एक मेल आ गया, उसमें आएगा कि उसको भी भेजा है। आपको और थोड़ा सा ऑथेंटिक होता है तो क्लाइंट से मेल्स का लॉग ले लीजिए। कल को जो मेल है वो डिलीवर हो गया है, वो सब देखने के लिए उस क्लाइंट का मेल लॉग। क्या है, मैं गलती से बोलता हूँ, मैंने बदमाशी के लिए क्लाइंट क्या किया, क्लाइंट ने मेल भेजा, गलत मेल आईडी पे भेज दिया, से फॉर एग्जांपल, तो वो तो मेल बाउंस हो जाएगा। तो आप उसका सारा मेल्स को बोलिए भाई मेल लॉग नोटिफाई करो, सारा मेल डिलीवर हो गया, आ गया उसका तो ठीक है, उसका नहीं आया उसकी। थैंक यू। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए अच्छा टाइम में सब ठीक है, खराब टाइम में क्या होता है ना, यू हैव टू बी वेरी सस्पेक्टिव। ऐसा ना हो, मैं जस्ट फ्रॉड के लिए बोलता हूँ कि किसी ने 2 करोड़ का फ्रॉड कैंडिडेटर दिखाया, ठीक है, तो आप बोला भाई मेल भेजो, तो ठीक है भेज देते हैं। उसने मान लीजिए माल भेजा, फॉर एग्जाम्पल दिखा दिया है डेटा टाटा स्टील के नाम पे, ठीक है। अब उसने कोई गलत मेल आईडी एक क्रिएट किया टाटा स्टील के नाम से या कोई भी नाम से, अगला वहां पे भेजा और वहां से रिप्लाई भी दिलवा दिया, पॉसिबल है। तो हम लोग को इस समय मेल आईडी, मेल गया कि नहीं गया, बाउंस तो नहीं हुआ, सब कुछ थोड़ा ठीक से देखना पड़ेगा, क्योंकि आज मेल से गया तो मेल से तो रिप्लाई आ ही जाएगा नॉर्मली, तो वो मेल आईडी भी सही है कि नहीं हमको वो भी देखना पड़ेगा। गॉट इट सर, थैंक यू। थैंक यू।
तरुण जी, हाँ प्रमोद जी, प्रमोद जी, प्रमोद Complete जी करते हैं, close। thank you. हाँ, we should close now. हाँ ठीक है, Thank you, ठीक, अभी और Mohit. कोई क्वेश्चन में नहीं है। Mohit, Tarun, you give the vote of thanks ना. अच्छा अच्छा, Tarun, थैंक यू मोहित जी, थैंक यू मोहित जी फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम and as usual being very nicely explaining all the provisions. You are also our opening batsman on this go-to meeting medium that we have started from today, sir. Thank you so much. It was a very my wonderful opportunity. I am now unmuting all the participants. Please give a big round of applause. Thank you, sir. thank Thank you, you. Mohit. Thank you, thank you. चलो, Thank you, sir. Thank you. Thank you. thank you. Okay. We are closing the meeting now. अरे यार, सबका फोटो क्यों नहीं आ रहा है इसमें? दादू, दादू।